Trigo is basically a kind of communication tool. Trigonometry was developed so that people could communicate with each other about triangles. In the first exercise, almost all the sums are so ka toa sums. So ka toa. So ka toa. Now, what is this so ka toa and what is trigonometry all about? I'll explain that to you. Imagine a right angle triangle. In every right angle triangle, one of the angle is 90 degree. Let's say the name of the triangle is ABC. B is 90. First thing, A or C can become reference angle. ए और सी के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिसाइड होंगे. बी 90 है इसलिए. सो लेट्स से आई चूज सी कि सी के हिसाब से मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना है. तो सी के सामने वाली साइड कौन सी है? ए बी. दैट्स कॉल्ड ऑपोजिट साइड. 90 के सामने हाइपो और बची वो एडजेसेंट. Once again, I am repeating the entire thing. Trigonometry is the mathematics of right angle triangle. In a right angle triangle, angle B is 90. Forget it. बचे A और C और A और C में से कोई एक रेफरेंस एंगल बन सकता है. इस बार C रेफरेंस एंगल है. Therefore, AB is the opposite side, AC is the hypo and BC is the adjacent side. But everything will change if I change the reference angle. Same triangle है, same 90 degree, B, A, C. But instead of C, if I choose that A should be the reference angle, then what will happen? A के सामने वाली साइड ऑपोजिट साइड हो. 90 के सामने हाइपो और बचा हुआ एडजेसेंट. So kindly observe, the triangles are same, but because the reference angle changed, तो एडजेसेंट और ऑपोजिट चेंज हो जाते. पहले ट्राइंगल में ए बी ऑपोजिट था, इसमें ए बी एडजेसेंट है. बी सी वॉज एडजेसेंट, इसमें बी सी ऑपोजिट है. इट्स लाइक सेइंग मैं लंबा हूं या छोटा. एम आई टॉल और एम आई शॉर्ट? The answer to this question depends on whom am I comparing myself with. If I am comparing myself with this person, I am tall. But if I am comparing myself with this person, I am short. वैसे रेफरेंस एंगल क्या है उसके हिसाब से ऑपोजिट और एडजेसेंट साइड डिसाइड होती है. सो लुक एट दिस राइट एंगल ट्राइंगल. एंगल ए इज द रेफरेंस एंगल. तो एंगल ए के हिसाब से दिस इज द ऑपोजिट साइड, दिस इज द एडजेसेंट साइड, और हाइपोटेनियस होता है हमेशा 90 के सामने. आगे कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल हो, 3 साइड होती है. सो व्हेन आई से ट्राइंगल ए बी सी, B is 90, मैं साइड्स को BC के सामने B, C के सामने छोटा C और A के सामने छोटा A बुला सकते. सो साइड्स
आर ए बी सी, और तीन साइड के कितने रेशियोज बन सकते हैं? 6 ratios are possible, and those 6 ratios are a by b by c by a, उसका उल्टा b by a, c by b, a by c। सो तीन साइड के 6 अलग रेशियोज बन सकते हैं, और मैथमेटिशियंस ने क्या किया, ये रेशियोज को नाम दे दिए साइन, कॉस, टैन, और साइन के इन्वर्स को कोसेक, कॉस के इन्वर्स को सेक, टैन के इन्वर्स को कॉट बुलाया। सो राइट एंगल ट्राइंगल हैज 3 साइड्स, 3 साइड्स के 6 रेशियो बन सकते हैं, और 6 रेशियो के 6 नाम है साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। और साइन, कॉस, टैन को याद रखने का गुरु मंत्र है सोह काह तोआ। सोह काह तोआ मीन्स साइन इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपो, SOH, काह, कॉस इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपो, एंड टैन, toa, is equal to opposite upon adjacent, which I can write by looking at the figure. फिगर में रेफरेंस एंगल A है, ये रहा, A is the reference angle, therefore I will say sin A, cos A, tan A, and sin A is BC upon AB, cos A is CA upon AB, tan A is TOA, opposite upon adjacent, BC upon CA। तो 3 रेशियोज मिल गए, और ये सो का तोआ को उल्टा करो तो बाकी के 3 रेशियो मिलेंगे। साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। Let's look at now in the form of a different example. There is a right angle triangle PQR, PQR, Q is 90, PQ, the length of the side PQ is 3, QR is 4, तो ये ऑटोमेटिक 5 हो जाएगा, बिकॉज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज 5 स्क्वायर। पाइथागोरस थियरम 9 प्लस 16 इज 25। अब मुझे रेफरेंस एंगल चूज करना है so that I could answer some questions. The reference angle I am choosing is angle R. So angle R के हिसाब से I am going to show you how to find out sine, cos and tan. Sine R, sine मतलब सोह, opposite upon hypo। R का opposite 3 है, R का adjacent 4 है, and hypotenuse is the largest side 5, opposite upon hypo 3 by 5। cos का, लेकिन cos नहीं लिखते, cos R, मतलब R के हिसाब से cos is adjacent upon hypo 4 upon 5, and tan, toa, tan R is opposite upon adjacent 3 by 4।
सोह का तोआ, और जैसे ही सोह का तोआ मिल गया, कोसेक आर, साइन का उल्टा हो, 5/3, सेक आर, कॉस का उल्टा हा, 5/4, एंड कॉट आर, ओआ का उल्टा आओ, 4/3. But so we have found out all 6 trigonometric ratios. पूरी फर्स्ट एक्सरसाइज इस पे बेस्ड है, बट द ओनली थिंग टू रिमेंबर इज सोह का तोआ. सेकेंड राउंड का कोई शॉर्टकट नहीं. दिस इज ऑल वन एंड द सेम थिंग. हाँ, you cannot afford to be confused. Confused in what sense? I'll tell you in what sense. Right angle triangle जिसमें a 90 है, ये सारे के सारे राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, एंड ऑल द एंगल a are 90. But sometimes b will be the reference and sometimes c will be the reference. तो कौन रेफरेंस है उसके हिसाब से कौन ऑपोजिट और कौन एडजेसेंट वो ढूंढना आना चाहिए. सो इफ आई से बी इज द रेफरेंस, you should be able to identify opposite, adjacent and hypo. So if B is the reference angle, opposite is AC, adjacent is AB, hypo BC. But B की जगह अगर C रेफरेंस एंगल हो तो ऑपोजिट AB बन जाएगा, AC adjacent and hypo remains same. But even if they change the orientation and say B is the reference, B के सामने opposite, adjacent, hypo. तो ऐसा नहीं है ऊपर हाइपो होता है, उल्टा राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो नीचे हाइपो हो जाएगा. इट डजेंट मैटर. इफ C इज द रेफरेंस तो C के सामने ऑपोजिट, C के बाजू में एडजेसेंट और 90 के सामने हाइपो. सो नो मैटर हाउ द अरेंजमेंट इज, B के सामने ऑपोजिट, B के बाजू में एडजेसेंट और 90 के सामने हाइपो. You cannot afford to get confused. That's all I'm saying. Opposite, hypo, adjacent. Very, very important. You have to by heart the Pythagorean triplets. As many as you can. तो इसका स्नैपशॉट ले लो, नहीं ले सकते तो मुझसे फोटोग्राफ मंगा लो, PDF में मंगाओ, खुद बनाओ, हाथ से लिखो, द बेस्ट. But remember that 3, 4, 5 is a right angle triangle, a Pythagorean triplet. 7, 24, 25 Pythagorean triplet. 9, 40, 41 Pythagorean triplet, जिसमें hypo is always the largest number और बाकी की दो साइड्स छोटी होती. और वही चीज़ के स्क्वायर्स लिखे हैं. 3, 4, 5 मतलब 9, 16, 25. 7, 24, 25 के स्क्वायर लिखे हैं 49, 576, 625. और इनके बीच में रिलेशनशिप है 9 + 16 = 25. 25 + 144 is 169. 400 + 441 is 841. ये दोनों याद रखो. It will be very helpful in this chapter. So let us start exercise 8.1, and as a reminder I have written here कि triplets by heart हो और सोहका तोआ पता हो तो ये exercise is easy. First question, triangle ABC, right angled at B. The figure is a must. You have to draw right angled at B, triangle ABC. AB 24, BC 7,
डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। फिर से एक बार मैं एक और फिगर बना रहा हूं, सेम टू सेम, एंगल बी 90, ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज 24, बी सी इज 7, ए सी इज हाउ मच? ए सी तुम्हें खुद ढूंढना है, एंड ए सी विल बी 25। आई जस्ट टोल्ड यू टू बाय हार्ट दैट ट्रिपलेट, बट यू विल हैव टू शो इट। तो 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपो स्क्वायर करके मेथड दिखाना जरूर। मैं एक बार दिखा रहा हूं, उसके बाद यू हैव टू शो इट ऑन योर ओन वेर एवर नेसेसरी। साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर इज हाइपो स्क्वायर। एक साइड है 24, दूसरी साइड है 7, तीसरी पता नहीं। 24 स्क्वायर इज 576 प्लस 49 is hypo square, 625 is hypo square, therefore hypo is 25. You have to show this in every sum if you are finding the hypo yourself. अब main चीज, they are asking us to find out sin A। तो पहला काम A को हाईलाइट करो A के हिसाब से, और अगर ए के हिसाब से है तो ये ऑपोजिट साइड, ये एडजेसेंट और ये हाइपो, एंड देन ओनली यू राइट डाउन साइन ए इज सो ऑपोजिट अपॉन हाइपो। ऑपोजिट 7, हाइपो 25, 7 अपॉन 25, फर्स्ट क्वेश्चन ओवर। कॉस ए इज का एडजेसेंट अपॉन हाइपो। मुझे ऑलरेडी पता है एडजेसेंट 24 है, हाइपो 25 है, सम ओवर। Why did I do a second figure? Because in the second two questions the reference angle has changed. A की जगह C कर दोगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। How? If C is the reference angle, तो ये ऑपोजिट हो गए भाई साहब, और ये हो गया एडजेसेंट। ओनली हाइपो रिमेन्स द सेम। देयरफॉर साइन सी इज सो ऑपोजिट अपॉन हाइपो 24 अपॉन 25, एंड कॉस सी का एडजेसेंट अपॉन हाइपो 7 अपॉन 25, सम ओवर। Observe that the numbers got interchanged. Sin A 7 upon 25 है, which is equal to cos B 7 upon 25। मतलब रेफरेंस एंगल चेंज करोगे और साथ में रेशियो भी चेंज करोगे तो आंसर सेम आएगा। cos A 24 upon 25, तो sin C also 24 upon 25। दिस इज समथिंग विच यू ऑब्जर्व। इसका कुछ करना नहीं है, बट ये ध्यान में रखना है कि ऐसा होता है। इन द फिगर फाइंड tan P माइनस cot R। फिगर कॉपी पेस्ट, ये रहा। क्यों दो बार? क्योंकि हम सीख रहे हैं, और ट्रिग्नोमेट्री में जितना धीरे सीखोगे उतना अच्छा सीखोगे। tan P, तो P रेफरेंस एंगल है, और P अगर रेफरेंस एंगल है तो P के हिसाब से व्हाट इज ऑपोजिट? QR। व्हाट इज एडजेसेंट? PQ। एंड व्हाट इज हाइपो, वो तो पता ही है। एंड cot R में R is going to be the reference, and if R is the reference, then what is opposite? PQ। what is adjacent and what is hypo, वो तो obvious है ही। therefore I had drawn two triangles। अब पहले tan P अलग से ढूंढते हैं। tan P is equal to तोआ, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, बट ऑपोजिट साइड है ही नहीं, एक्चुअल में वो फाई है।
पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स यू हैव टू बाय हार्ट। एंड 12, 13, 5 में 5 कैसे आया वो तुम्हें दिखाना है बाय डूइंग पाइथागोरस। ऑपोजिट साइड 5, एडजेसेंट साइड 12, tan p मिल गया। और दूसरे ट्राइंगल में से cot r। नाउ cot, हाउ टू फाइंड cot? मन में चलना चाहिए, सोका तोआ, सोका तोआ, सोका तोआ, सोह का तोआ, साइन कॉस टैन, और साइन का इनवर्स कोसेक, कॉस का इनवर्स सेक, टैन का इनवर्स कॉट। तो मुझे जब कॉट फाइंड करना है तो मेरे दिमाग में चलेगा तोआ, तो लिखूंगा मैं कॉट, टैन इज इक्वल टू तोआ, ओ आ का उल्टा आ ओ, एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। सो कॉट आर is adjacent upon opposite, adjacent is 5, opposite is 12, और दोनों वैल्यू फाइंड करने के बाद tan p माइनस कॉट आर इज इक्वल टू 0 लिख देना, क्योंकि tan p और कॉट आर की वैल्यू सेम निकली। ये फर्स्ट सम जैसा ही हुआ कि अगर tan का कॉट करो और p का r तो वैल्यू सेम रहती है। पॉइंट टू बी ऑब्जर्व्ड। तो कोई पागल सम में आएगा ऐसा, ट्राइंगल ए बी सी, कोसेक, नहीं इजी सम था, कॉस सी इज √3 अपॉन 1.51 बार। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ए? और दिया होगा एंगल बी 90। तो इफ एंगल बी इज 90, ए और सी रेफरेंस एंगल बन सकते हैं, और ए और सी रेफरेंस एंगल है तो कॉस सी में कॉस का साइन और सी का ए कर दो तो वैल्यू सेम रहती है। तो जिसने जिसने ये ऑब्जर्व करके याद रखा होगा उसी को ये सम आएगा, और अगर भूल से भी कुछ और करने गए तो पागल हो जाओगे। सिमिलरली ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल आर 90, sec p is √1.5 upon 5√3, then what is cosec q? तो भी सेम आएगा। तो cos sin की जोड़ी है, यहां पे tan cot की जोड़ी है, और sec cosec की जोड़ी है। बट ये जोड़ी किसके लिए है? when you change the ratio and the reference angle, the values remain same. This is an important observation. Third sum, sin A is 3/4, calculate cos A and tan A. अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है। sin A means A is the reference angle. It means the triangle has one of its angle as A. इसका मतलब B यहाँ हो सकता है और बचा हुआ एंगल C. But A is the reference angle, therefore this is the opposite side, this is the adjacent side, and this is the hypo. But I don't have any sides. Sin A is 3/4 is equal to opposite upon hypo. क्यों? Because sin मतलब सोह। Therefore, let opposite side is equal to 3k. Hypo is equal to 4k. तो साइन में से, साइन मतलब सोह, तो ऑपोजिट और हाइपो की वैल्यू मिल जाती है, लेकिन 3k रखना कंपलसरी है। ऑपोजिट 3k, हाइपो 4k, डू नॉट राइट 5k, दैट इज ओवर कॉन्फिडेंस। क्यों? क्योंकि पाइथागोरस करने पे तुमको रियलाइज होगा कि 3, 4, 5 ट्रिपलेट है ही नहीं।
3 4 5 में 5 is hypo, but here 4 is the hypo, so we are finding the missing side. तो स्टोरी कुछ अलग है. 9k स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर इज 16k स्क्वायर. 9 सामने माइनस हो जाएगा. 7k स्क्वायर side is equal to root 7k. Therefore, the third side is root 7k. So don't do 3 4 5 blindly. 3 4 5 तब होगा जब 5 hypo हो. And this showing this contains marks. ये एक mark मिलेगा if it's a big sum. So now from sine I got opposite hypo. From opposite hypo I got adjacent. And now I will find what they have asked. Cos A का adjacent upon hypo. Adjacent root 7k. Hypo 4k और k तो कट हो जाएगा. फाइनल आंसर रूट 7 अपॉन 4. tan A tan A tan मतलब तोआ. ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. ऑपोजिट 3k एडजेसेंट रूट 7k. फाइनल आंसर 3 अपॉन रूट 7. सो का तोआ. कॉट ए. अच्छा 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8. 15 कॉट ए मतलब 15 मल्टीप्लाइड बाय कॉट ए. तुमको उल्लू समझते हैं टेक्स्ट बुक वाले. 15 को सामने भेज दो तो 8 अपॉन 15 हो गया. एंड कॉट मतलब टैन का उल्टा. टैन इज तोआ. दिस इज आओ. आओ मतलब एडजेसेंट अपॉन opposite. Therefore, adjacent side I got as 8k and opposite side I got as 15k. Cot A. Therefore, the reference angle is A. 90 degree is B. C. A के सामने opposite. ए के नीचे एडजेसेंट. बी के सामने हाइपो. और दो वैल्यूज जो है मेरे पास. एडजेसेंट इज 8k. ऑपोजिट इज 15k. 8 और 15 का पाइथा करके 17 आएगा. दैट यू हैव टू डू योर सेल्फ. दिस इज अ स्टैंडर्ड ट्रिपलेट. सो 8 15 17. बस पहला क्वेश्चन. Find sine A. Sine A is so opposite upon hypo. Opposite 15, hypo 70. Sec A. अब sec किसका उल्टा होता है? cos का. तो cos मतलब का. तो ये है हा. हा मतलब hypo upon adjacent. 17 upon 8. Sum over. They exactly like third sum. तो कोई भी एक रेशियो में से दो साइड मिलती है. दो साइड में से पाइथा करके तीसरी साइड मिलती है. और तीसरी साइड के बाद सो का तोवा जिंदाबाद. सेम टू सेम. sec 13/12. तो sec थीटा. अब थीटा का मतलब होता है कि ये एंगल थीटा है. मैं नाम चाहे कुछ भी रखूं. आई कैन नेम इट एनीथिंग आई वांट, बट द रेफरेंस एंगल इज कॉल्ड थीटा. तो आर की जगह थीटा है. नो प्रॉब्लम. दिस इज ऑपोजिट साइड. दिस इज हाइपो एंड दिस इज एडजेसेंट साइड. सेक थीटा 13/12. बट सेक कॉस का उल्टा होता है. कॉस मतलब का. तो ये है हा. हाइपो अपॉन एडजेसेंट. सो का तो सेक तक तक
हाइपो 13 लिखना मत, मार्क्स कट जाएंगे. यू हैव टू राइट 13K. एडजेसेंट 12K. पाइथा करके दिखाना पड़ेगा, आंसर आएगा 5K. कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ऑल अदर में सेक तो है, बाकी के तुम फाइंड कर सकते हो. सो तो साइन आर इज ऑपोजिट अपॉन हाइपो 5/13. काह कॉस आर एडजेसेंट अपॉन हाइपो 12/13. तोआ tan का टी कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल भी, ऐसा कोई ग्रेट रूल नहीं है. tan आर इज तोआ ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. साइन का उल्टा कॉसेक आर 13/5. कॉस का उल्टा सेक आर 13/12. tan का उल्टा कॉट आर 12/5. सोकातोआ जिंदाबाद. Sixth question, if angle A and B are acute angles such that cos A is equal to cos B, show that angle A is equal to angle B. बहुत ही इजी है. A B acute मतलब ऑटोमेटिकली C90, क्योंकि एक्यूट एंगल राइट एंगल ट्राइंगल में दो ही होते, छेड़ाना बे एंगल. C90. ओके. गिवन cos A is equal to cos B. तो यहां से शुरुआत करते हैं. cos A એટલે કાહ અને કા એટલે એડજેસન્ટ अपॉन हाइपो. તો વારાફરતી કરીએ. A ને રેફરન્સ રાખો cos A, તો એડજેસન્ટ अपॉन हाइपो, एडजेसेंट हाइपो AC अपॉन AB આવે. ઇઝ ઇક્વલ ટુ cos B એટલે B ને રેફરન્સ રાખો તો કાહ એડજેસન્ટ अपॉन हाइपो BC अपॉन AB આવે. सो ब्लू का एडजेसेंट और हाइपो अलग है, रेड का एडजेसेंट हाइपो अलग है. लिख लिया. AB कट, AC इज इक्वल टू BC. बट हमें पता है कि अगर AC BC सेम है तो AC के सामने का एंगल B और BC के सामने का एंगल A सेम है, बिकॉज आइसोसेलेस ट्राइंगल में if two sides are same, the opposite two angles are same. Hence proved that angle A and B are same. तो सोहकातोआ हुआ ना यहाँ पे. So this was a unique sum. Cot theta 7/8. ट्राइंगल बनाओ 90 डिग्री. थीटा ऑपोजिट, थीटा का एडजेसेंट, 90 के सामने हाइपो. कॉट थीटा 7/8. कॉट मतलब टैन का उल्टा. टैन इज तोआ, दिस इज आओ. 7/8. एडजेसेंट 7K, ऑपोजिट 8K. हाइपो ढूंढना पड़ेगा क्योंकि ये ट्रिपलेट नहीं है. ट्रिपलेट नहीं है तो क्या करने का, 8K स्क्वायर प्लस 7K स्क्वायर इज हाइपो स्क्वायर. सो 64K स्क्वायर प्लस 49K स्क्वायर इज हाइपो स्क्वायर. 113. Root 113 will be basically the answer. Root 113K. Okay. Next. अब we are ready to answer the question in one of the styles. And that style is
वन प्लस साइन, वन माइनस साइन, वन प्लस कॉस, वन माइनस कॉस, तो ये सब में से साइन कॉस की वैल्यू डाल दो। वैल्यू डालने के लिए वैल्यू निकालनी पड़ेगी। साइन थीटा इज इक्वल टू सोह ऑपोजिट अपॉन हाइपो 8 अपॉन रूट 113, कॉस काह एडजेसेंट अपॉन हाइपो 7 अपॉन रूट 113. Now I'll substitute the value in the main question. 1 plus sine 1 plus 8 upon root 113 multiplied by 1 minus 8 upon root 113 upon 1 plus cos 7 upon root 113 1 minus 7 upon root 113. ये तो a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी वही है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर और रूट 113 का स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम 113 माइनस 64 upon 113. Again LCM 113 minus 49 upon 113. ये 113 cut, 49 upon 64 is the final answer. So revising the sum, cot थीटा 7/8 में से मुझे पता चल गया कि 7 और 8 का पोजीशन क्या है। उससे पता चला दैट हाइपो इज रूट 113 बिकॉज ऑफ पाइथा। फ्रॉम दैट आई फाउंड आउट साइन कॉस वैल्यू एंड दैट साइन कॉस वैल्यू आई सब्सटीट्यूटेड टू फाइंड द आंसर। बट देयर इज अनदर ऑप्शन, जो पूरा ट्रिग्नोमेट्री सीख जाओगे फिर पता चलेगा, बट मैं अभी से बता रहा हूं। 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन अपॉन 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस वॉज द क्वेश्चन। 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर होता है, बट थीटा अलग, स्क्वायर। Don't write sine theta square. This is wrong in trigonometry. Sine square theta. So sine into sine is sine square. And 1 plus cos into 1 minus cos is 1 minus cos square theta. एक फॉर्मूला जो तुम्हें नहीं पता है, जो लास्ट लेक्चर के बाद तुम यूज कर सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर and 1 minus cos square is sin square. हाँ, ये फॉर्मूला लिखना है तो लिख लो। 1 minus sin square is cos square and 1 minus cos square is sin square. And cos square upon sin square is cot square. नया फॉर्मूला जो अब भी सिखाऊंगा, cos अपॉन साइन इज कॉट, तो cos स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर इज कॉट स्क्वायर। कहने का मतलब, सम को कन्वर्ट किया तो वो कॉट स्क्वायर बन गया, और कॉट की वैल्यू तो 7/8 दी हुई है। आंसर 49 अपॉन 64। समझ में आया? Cot is 7/8 given, 49 upon 64 आंसर। और सेकेंड क्वेश्चन देखो कितना चिंदी है, दे आर आस्किंग कॉट स्क्वायर, तो कॉट है, कॉट स्क्वायर इज 49 अपॉन 64, मतलब ये दोनों सेम है। एनीवेज, आई टोल्ड यू दैट आई एम गोइंग टू टेल यू अ पर्टिकुलर फॉर्मूला, नाउ इज द टाइम। सी केयरफुली,
साइन मतलब सोह, कॉस मतलब काह, एडजेसेंट अपॉन हाइप। तो एक मैथमेटिशियन ने साइन और कॉस को डिवाइड कर दिया, साइन डिवाइडेड बाय कॉस, और देखा कि होता क्या है, ऑपोजिट अपॉन हाइपो, एडजेसेंट अपॉन हाइपो, हाइपो कट हो गया, आया ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। बट ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट ओआ वो तो टैन है, तो आ ये तो कब से यूज कर रहे हैं, टैन इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो नया फॉर्मूला पैदा हुआ, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फिर वो मैथमेटिशियन को क्या सूझा, तो उसने किया कॉस अपॉन साइन, कॉस इज एडजेसेंट अपॉन हाइपो, साइन इज सोह ऑपोजिट अपॉन हाइपो, हाइपो हाइपो कट, एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, ये तो कॉट है, टेन का उल्टा, आओ ओ आ। सो सोका तो आ खेलते खेलते वी हैव सडनली ग्रेजुएटेड टू द नेक्स्ट लेवल, सोह का तोआ। दूसरी चीज सीखी, साइन का ऑपोजिट कॉसेक, इनवर्स, कॉस का इनवर्स सेक, टेन का इनवर्स कॉट, बट ऐसे एरो करके नहीं लिखते। तो हाउ डू यू राइट कि वो एक दूसरे का उल्टा है, साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक, और cosec is equal to 1 upon sine. This is how you write they are inverse of each other. Cos is equal to 1 upon sec, or sec is equal to 1 upon cos. Tan is equal to 1 upon cot, or cot is equal to 1 upon tan. This is called inverse relationship. मतलब साइन थीटा 2/3 है तो कॉसेक थीटा 3/2 होगा ही। सो वी लर्नड सो का तोआ, करते करते वी लर्नड कि एक्चुअल याद रखने के लिए 3 ही है, ये 3, बाकी 3 उसके इनवर्स है। अब मुझे ये बताओ, साइन इज इक्वल टू 1/कॉसेक में अगर कॉसेक सामने मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा, साइन इंटू कॉसेक इज 1, साइन सामने मल्टीप्लाई हो तो भी सेम रिजल्ट। सिमिलरली कॉस इज 1/सेक, इफ आई टेक सेक ऑन लेफ्ट साइड एंड मल्टीप्लाई I will get 1, and tan is 1/cot, so tan into cot is 1. It's like saying 3/7 को अपने रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करो तो 1 आता है। ये ट्रिग्नोमेट्री में वही कह रहे हैं, that sine and cosec are reciprocal of each other, that's why when you multiply them answer is always 1. एंड वन मोर लास्ट थिंग जो अभी अभी बताया मैंने, दैट tan इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, एंड कॉट इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन। ये छप जाना चाहिए। फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म होते होते दिस हैज टू बी इम्प्रिंटेड इन योर माइंड, तो ट्रिगो इजी हो जाएगा। So pause and copy everything. This is the list of formulas जो end तक काम आएंगे। 3 cot A is 4. 3 cot A is 4. तो cot A is 4/3, और अगर cot A 4/3 है
तो tan A 3/4, ये तो इजीली मिल गया बिकॉज दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर. दैट्स द फर्स्ट थिंग. tan मिल गया, बट मुझे cos और sin भी चाहिए. तो अब ट्राइंगल भरना पड़ेगा. 90 डिग्री, थीटा या ए बी सी. tan इजी होता है हमेशा, सो का तोवा ऑपोजिट एडजेसेंट. तो ऑपोजिट 3, तो रेफरेंस एंगल का ऑपोजिट 3K और एडजेसेंट 4K, पाइथागोरस 5K, 3 4 5. तो cos की वैल्यू मिल जाएगी. cos A का एडजेसेंट अपॉन हाइपो, ये है एडजेसेंट 4 अपॉन हाइपो 5. साइन A, सो ऑपोजिट, A का ऑपोजिट अपॉन हाइपो. यू हैव वॉट एवर यू रिक्वायर. अब तुम्हें चेक करना है. मेन क्वेश्चन क्या है? चेक वेदर दिस इज इक्वल टू दिस. वेरी इजी, इट्स बेसिक मैथ्स. 1 माइनस tan स्क्वायर, और tan 3/4 है, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, मतलब 1 माइनस 9 अपॉन 16, 1 प्लस 9 अपॉन 16. एलसीएम लोगे तो 16 माइनस 9 अपॉन 16, 16 प्लस 9 अपॉन 16, अपॉन 16 अपॉन 16 कट. 16 माइनस 9 7, 16 प्लस 9 25. बट इज इट सेम as cos square minus sin square? Cos square minus sin square, 16 upon 25 minus 9 upon 25, 16 minus 9 upon 25 is 7 upon 25. Answer is yes. Check whether this is equal to this or not. We have checked and it is equal. So triangle बनाना भूलना मत. Without the figure you are blind. You don't know what is opposite. You don't know what is adjacent. You don't know कि 3 4 5 पाइथा होगा कि 3 4 और √7 होगा. याद है पहले आया था. So figure is a must. tan A is 1 by √3. 90 A B C. tan A toa is 1 upon √3. तो A का ऑपोजिट ये रहा, और एडजेसेंट ये रहा, और हाइपो ये रहा. और 9 स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम में सीखा था दैट इफ दिस इज 1K √3K, तो ये होगा 2. कैसे? खुद पाइथा करो. डू द पाइथा, यू विल रियलाइज दैट यू हैव लर्न दिस इन 9 स्टैंडर्ड. इट्स नॉट अ बिग डील. बस अब साइन और कॉस की वैल्यू फाइंड करो, सब्सटीट्यूट करो, एंड यू विल गेट योर आंसर. साइन ए, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूं. आप साइन ए सो ऑपोजिट अपॉन हाइपो 1/2. कॉस सी, तो मैंने क्या कहा था? साइन का कॉस और ए का सी करोगे तो वैल्यू सेम रहता है. याद है तो फायदा हो जाएगा. प्लस कॉस ए का एडजेसेंट अपॉन हाइपो √3/2 मल्टीप्लाइड बाय साइन सी, कॉस का साइन ए का सी, तो वैल्यू सेम रहती है. 1/4 प्लस 3/4 is 4/4. फाइनल आंसर 1. सिमिलरली सेकेंड सम सॉल्व कर रहा हूं. कॉस ए
का एडजेसेंट अपॉन हाइपो मल्टीप्लाइड बाय कॉस सी। अब ये सेम नहीं है, कॉस का कॉस है, ए का सी हो गया है, तो रेशियो चेंज हो जाएगा। माइनस साइन ए, सो ऑपोजिट अपॉन हाइपो, and sin c will change, it will become root 3 by 2, which is root 3 by 4 minus root 3 by 4. Final answer is 0. तो ये था डायरेक्ट सम, और डायरेक्ट सम नहीं समझ में आएगा बिकॉज यू हैव जस्ट स्टार्टेड इट। तो मैं तुमको रेकमेंड करूंगा इज्जत से साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी की वैल्यू निकाल के रखो एंड देन सब्सटीट्यूट। राइट एंगल ट्राइंगल एट क्यू, पी क्यू आर, पी आर क्यू आर 25, तो पी आर प्लस क्यू आर 25 पी आर एक्स, तो क्यू आर 25 माइनस एक्स था सर। पी आर एक्स क्यू आर 25 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का टोटल 25 है। पी क्यू 5, साइन पी कॉस पी टैन पी। अब साइन कॉस टैन फाइंड करने से पहले पाइथा करके एक्स की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। सो दिस इज नॉट ट्रिग्नोमेट्री, दिस इज बेसिक मैथ्स। पाइथा साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर इज हाइपो स्क्वायर। 25 प्लस 625 माइनस 50x प्लस एक्स स्क्वायर is equal to x square. 650 minus 50 सामने चला जाएगा and then 50 will get divided, x is equal to 13. Therefore this is 13. 25 minus x, 25 minus 13, 12, 5. ये तो जाना पहचाना है 13, 12 and 5. So this is the first step, and the minute you have the three sides sin p, cos p, tan p, p को रेफरेंस लेके तुम आराम से फाइंड कर सकते हो, and you have to find it yourself. True or false? Value of tan a is always less than 1. Value of tan a, opposite, adjacent, hypo. Tan a is toa, opposite upon adjacent. It is false. क्यों? मैंने सोचा कि मैं 5, 12 और 13 ट्राइंगल 3, 4, 5 लेता हूं। 3, 4, 5, तो tan की वैल्यू आएगी 3/4, विच इज लेस देन 1, लेस देन 1। लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे भी हो सकता है जहां पे ये 4 है और ये 3 है, इट इज परफेक्टली ऑल राइट। तो अब tan की वैल्यू हो जाएगी 4/3, ये तो 1.33 हो गया, विच इज मोर देन 1। देयरफॉर फॉल्स, tan a ऑलवेज लेस देन 1 इज फॉल्स। वो मोर देन 1 भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन ऑपोजिट एंड एडजेसेंट साइड्स। sec a 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ a, कह रहे हैं sec a
12/5 हो सकता है, ट्रू और फॉल्स। तो सेक मतलब कॉस का इनवर्स, कॉस मतलब काह का उल्टा हा मतलब हाइपो अपॉन एडजेसेंट, तो हाइपो 12 एडजेसेंट 5, ये क्या है ए, एडजेसेंट हाइपो opposite. This is the scenario, you have to say true or false. So sec मतलब काह का उल्टा हा, 12 is hypo, 5 is adjacent. Of course yes, it's true, क्योंकि 144 minus 25 √119 वैल्यू आती है इसकी. This is a perfect right angle triangle and sec A is 12/5 for this triangle, therefore it is true. Sec A 12/5 हो सकता है. Cos A is the abbreviation for cosecant. Wrong. चलो एक नई चीज बताता हूं. साइन का पूरा नाम साइन, कॉस का पूरा नाम कोसाइन, टैन का पूरा नाम टैनजेंट, कॉट का पूरा नाम कोटेंजेंट, सेक का पूरा नाम सेकेंट और कोसेक का पूरा नाम कोसेकेंट. हम जानो, बट कौन इतने बड़े बड़े नाम लिखेगा? देयरफॉर वी कॉल देम साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक. तो कॉस ए का नाम कोसाइन है, कोसेकेंट नहीं है. Cot A is the product of cot and A. False. Cot A का मतलब ये नहीं होता that cot is multiplied by A. Cot A का मतलब है cot ratio according to angle A. It's not multiply A. It's reference angle A. So false. साइन थीटा 4/3 हो सकता है. लो चेक करते हैं. दिस इज थीटा. साइन मतलब सोह मतलब ऑपोजिट अपॉन हाइपो. ऑपोजिट 4, हाइपो 3. असंभव, क्योंकि हाइपो कैनॉट बी स्मॉलर देन द साइड. देयरफॉर साइन थीटा कैन नॉट बी 4/3. इट इज फॉल्स. तो ट्रू और फॉल्स में भी सोका तोआ ही है. सोका तोआ करने का, फिर चेक करने का कि ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है. हाइपो कैनॉट बी स्मॉलर देन 4. That's the end of first exercise. Hope you liked it. I'm very excited that we have finally started Trigo. अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो मजा आएगा, समझ में भी आएगा. But don't ignore the homework. Do it before the next lecture starts. Thank you.